So basically, today we are going to learn about types of poisoning. So in previous classes, we came to know that what are the symbolic representation of different hazards, different toxic agents, through which we can come to know that the chemical contains what kind of agents. Either it may be carcinogens, either it may be uh, biohazard, or whatever else. So we were discussing about types of poisoning. So what kinds of substances and what kinds of poisoning cases may be there? If we say about the poisoning means if a person, if an individual suffers or inhaled or ingested a poison, and according to that they show some kind of behavioral alterations, physiological alterations. So basically, if we discuss about types of poisoning, it is basically classified into three. That is the acute, the second one is subacute, and third one is chronic poisoning. So if we discuss about the acute poisoning, acute means instant. Matlab, when we discuss about instant poisoning, it means that a person or any individual, in case of animal health, we discuss about fish or any aquatic animals, they show immediate response, immediate behavioral alteration or physiological alteration. So basically what happens? If any individual is exposed to a relatively large or even a single dose of toxic agent in a particular quantity, so they show a rapid manifestation of clinical signs of that particular agent. Clear? So such kind of poisoning cases may confer as acute poisoning. So what you can see, you can observe there is a sudden violent syndrome that is caused by a single large dose of poison. Means a single dose of poison may change their behavior, their physiology और whatever else. तो जब हम एक्यूट पॉइजनिंग की बात करेंगे तो सिंपल है, इसमें एक सिंगल लार्ज डोज जब हम किसी टॉक्सिक एजेंट का देते हैं तो उसमें तुरंत तत्काल उसमें जो क्लिनिकल साइंस हैं वो शो होने लगते हैं। ठीक है, जैसे गैस्पिंग हो सकता है, जो मछलियां हैं वो ऊपर आ सकती हैं, गल्फिंग कर सकती हैं, गैस्पिंग हो सकता है, या इरिटेबल मूवमेंट हो सकता है। सो दीज केसेस कैन बी fall under the acute poisoning cases. Now, so basically if we say about acute poisoning, so basically such kind of clinical manifestation may show within few minutes to hours to a particular week. मतलब एक वीक के अंदर अंदर वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो करेगा, दे मे डाई। यानी एक सिंगल लार्ज डोज ऑफ पॉइजन यदि हमने एडमिनिस्टर किया तो वो तत्काल, चाहे वो मिनट ले ले, घंटा ले ले, या मैक्सिमम 1 वीक ले ले, दे विल शो a certain kind of response, they show a certain kind of clinical signs of intoxication. So such kind of poisoning cases may be fall under this category, that is acute poisoning. Now we will discuss about the subacute poisoning. So basically, if we classify poisoning cases, this is mainly broadly defined into two, acute and chronic. In between, in the line of this acute and chronic, the fine lining is called as subacute poisoning. Clear? Acute यानी एक तुरंत, और chronic मतलब lingering for long period. तो ये जो लंबे समय के बाद किसी का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो हो रहा है और कोई जो तुरंत हो जा रहा है, उसके बीच की एक फाइन लाइनिंग होगी, उसको हम लोग सब एक्यूट या सब क्रॉनिक कह सकते हैं। यानी कि वो तुरंत शो नहीं किया, विद इन अ वीक शो नहीं किया, बट इट टेक्स टाइम एंड
इवन जो हमारा जो क्रॉनिक फेज में है वो क्या है, वो लंबे समय के अंतराल के बाद है, जैसे 6 महीने, साल भर या 2 साल तक वो शो करता है। सो बेसिकली इस फाइन लाइनिंग को ही हम सब एक्यूट या सब क्रॉनिक बोलते हैं। जो या तो ये क्रॉनिक, जो सब क्रॉनिक या सब एक्यूट लेवल है, दैट इज फर्दर move to chronic phases. So basically in subacute phases, when the exposure level is lower and the survival time is longer than in acute poisoning. So in case of acute poisoning, what we have told about the duration, it may be of 1 week. But in case of subacute, suppose ये time लेता है, basically हम लोग जो भी experimental design setup करते हैं for toxicity studies in aquaculture, then we see that a period of 90 days or 45 days generally we used to keep. ठीक है, हम लोग 45 से 90 दिनों का एक टाइम फ्रेम रखते हैं, उसमें हम उस पर्टिकुलर टॉक्सिक एजेंट की जो है वो टॉक्सिसिटी ऑब्जर्व करते हैं, सो दैट इट विल गिव अ not clear but it will give a picture of that particular agent, whether agent is a acute poisoning or it may lead to chronic poisoning cases. Clear? So here exposure level is lower and the survival time is longer obviously than in acute poisoning. Then symptoms of toxicity develop gradually and the period between exposure and manifestation of signs of poisoning is again relatively short. मतलब क्या हुआ कि जो भी टॉक्सिसिटी है वो धीरे धीरे डेवलप करता है किसी में, ठीक है, और वो धीरे, जैसे किसी भी ड्रग का एक पर्टिकुलर सिम्टम है, वो सिम्टम तुरंत क्विक नहीं शो कर रहा है, बट स्लोली 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 इट डेवलप्स एंड द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ साइन, कि जब हमने उस दवाई को या उस टॉक्सिक एजेंट को या पॉइजन को जब हमने डाला और जो मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉइजनिंग है, जो साइंस है, वो क्या होगा, 45 से 90 दिनों का होता है। तो अगेन ये क्या है, छोटा है, यानी एक्यूट से बड़ा और क्रोनिक से छोटा। जब हम क्रोनिक की बात करते हैं, इट इज क्लियरली फ्रॉम 6 मंथ टू 2 इयर्स। अब किस केस में 6 मंथ होगा, किस केस में 2 इयर्स होगा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले सब एक्यूट के बारे में देखते हैं। Then here low doses of poisons are administered for a period of 90 days generally to study the NOEL or NOEL। ये दोनों टर्म एक ही हैं, आप इसको किसी किसी बुक में देख सकते हैं, जैसे नो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट लेवल, the highest dose where it doesn't show any kind of quick response, that is called NOEL। ठीक है, नो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट लेवल और नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल, यानी पर्टिकुलर एजेंट व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड टू अ इंडिविजुअल, देन इट डजंट शो एनी काइंड ऑफ acute poisoning cases, any acute adverse alterations within their physiology or behavior। ठीक है, तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, सब एक्यूट पॉइजनिंग। ठीक है, यदि 90 डेज के अंदर में वो सिम्टम्स थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली डेवलप होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब एक्यूट फेज है। देन क्रॉनिक फेजेस में क्या होता है, यूजुअली काउज्ड बाय मल्टीपल एक्सपोजर टू द पॉइजन। बहुत पुराने सीरियल्स वगैरह सब में देखते होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोगों को सुनते होंगे कि यदि एक पर्सन स्लोली स्लोली एक लिटिल अमाउंट में कोई चीज को इनहेल करता है, इंजेस्ट करता है या एडमिनिस्टर किया जाता है उसमें, तो सर्टेनली उसकी जो बॉडी है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के अगेंस्ट रेजिस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, वो रिस्पॉन्ड लेस करता है। जैसे हम एक सपोज शराबी की बात करें, एक आदमी जो बहुत ज्यादा अत्यधिक शराबी या बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड होता है, उसको लिटिल अमाउंट ऑफ ड्रग्स से कुछ नहीं होता है, वो क्या करता है, उसको हायर और हायर अमाउंट में डोज चाहिए होता है। इन केस ऑफ एनेस्थेटिक कंडीशन, ऐसी हम लोग जब किसी भी इंडिविजुअल को एनेस्थेटिक्स देते हैं, इवन की फिश को भी, यदि वो पहले ही हम उसको ये हैबिट लगाएं या लिटिल लिटिल अमाउंट में उसको एनेस्थेटिक का जितना कि जनरली हम लोग जो एनेस्थेटिक का डोज देते हैं वो कब देते हैं कि ये हमारा रिस्पॉन्स शो करे, ये सीडेटिव, एनेस्थेटिक शुड एक्ट एज एन सीडेटिव, मतलब वो सीडेशन के रूप में काम करे। ठीक है, और जब वो स्लोली स्लोली, जब हमारा एक पर्टिकुलर जो लेवल 4 होता है, जब लेवल 4 पे जब सीडेशन करते हैं उसको,
जहां पे एक इंडिविजुअल वो अपना कॉन्शियसनेस कंप्लीटली लॉस नहीं करता है, बट पार्शियल लॉस ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी जो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है उसका पार्शियल लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उस स्टेज में ही हम लोग कोई किसी भी चीज को ट्रीटमेंट कैरी ऑन करते हैं, इन केस ऑफ फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स। तो बेसिकली सिडेशन जो होता है वो सबसे पहला पॉइंट है, यदि आप लोग को याद होगा। तो इस केस में क्या होता है कि यूजुअली काज्ड बाय मल्टीपल एक्सपोजर टू द पॉइजन, यानी किसी भी टॉक्सिक एजेंट का हम मल्टीपल डोज दें और लिटिल लिटिल अमाउंट में दें, तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है, स्लोली इट विल नॉट डेवलप एनी काइंड ऑफ अल्टरेशन, फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन, बिहेवियरल अल्टरेशन, बट इट मे लीड टू सर्टेन टिश्यू डैमेज। बट इन सपोज कि कोई हम लोग डे बाय डे हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं और अचानक से सुनते हैं कि 40, 45 या 50 की उम्र में कैंसरस हो गया, it becomes carcinogens when this limit exceeds from the tolerance limit। जो टॉलरेंस लिमिट है वो टॉलरेट कर रहा है तभी हमको एक्ट नहीं कर रहा, बट ये क्या होता है धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट यानी क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा यहाँ पे, धीरे धीरे या तो एक्यूमुलेट होगा या तो टिश्यू डैमेज करेगा, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा ये कब मैनिफेस्टेशन होगा, when the tissue, the organ will be saturated from that particular poison, then the behavioral alteration may be shown by that particular individual. So basically acute, subacute and chronic. In case of chronic cases में क्या होता है, there is generally it is caused by multiple exposure to the poison. Second, when we say about chronic means it may linger for long period of time. So why it is written over there that persistent lingering condition brought about by small repeated dose. Clear? यानी small repeated dose जब हम देते हैं तो एक certain ड्यूरेशन तक कोई साइन सिम्टम शो नहीं करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद, एक सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद वो अपने जो उसका जो टिश्यू डैमेज हो रहे होंगे या ऑर्गन डैमेज हो रहा होगा वो क्या होता है, वो शो करने लगता है। जैसे एक अल्कोहलिक एक जो क्या बोलते हैं, एक सपोज कोई नशा करता है कंटिन्यू, तो धीरे धीरे क्या होता है उसकी मेमोरी पावर छीन होती जाती है, जो तुरंत नहीं पता चलता है, बट मतलब उस तरह के जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो क्या करने जो उसकी जो साइन सिम्टम है उसको आप उसके जनरली हम लोग बोलते हैं डिमेंशिया जो स्टार्ट होता है वो 50 से 60 के बाद होता है, लेकिन वो पहले शो करने लगा 40 साल में, लेकिन ये कब शो किया आपको, बेसिकली जब उसको जो एक एवरेज पीरियड ऑफ टाइम है, जो एवरेज एज है उसके पहले ये शो कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया। सो बेसिकली क्रोनिक पॉइजनिंग एक्सिबिट अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट दैट इज एक्यूमुलेट और टिश्यू डैमेज एंड द एक्सपोजर टाइम इज 6 months to 2 years। सो बेसिकली कहाँ पर 6 months और कहाँ पे 2 years, तो ऐसे कुछ 2 years बेसिकली रोडेंट्स के लिए हम लोग रखते हैं जो क्रोनिक फेजेज में वो शो करता है। ठीक है, रोडेंट क्यों, बिकॉज दे आर वेरी मच रेजिस्टेंट, जो उनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, जो उनका आपने देखा होगा जो एनाटॉमी जो होती है क्या बोलते हैं इंसेक्ट्स की, दे आर डिफरेंट देन दैट ऑफ फिशेस। तो फिश के केस में 6 months से 1 year के बाद से आपको वो चीज दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है, स्लोली इट विल सो अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम लोग किसको एक्यूट के कैटेगरी में, किसको सब एक्यूट के कैटेगरी में और किसको क्रोनिक पॉइजनिंग के कैटेगरी में रखेंगे। सो यहाँ इस स्लाइड में किसी को कोई डाउट है? सर तो इसमें डेंजरस सबसे एक्यूट हो गया। हाँ डेंजरस सबसे ज्यादा एक्यूट पॉइजनिंग में हो गया ना सर? यस, इन केस ऑफ पॉइजन इट विल बी द एक्यूट पॉइजनिंग वेयर इट मे लीड टू डेथ। ठीक है, इट मे लीड टू डेथ, सर्टेन एलर्जिकल रिएक्शंस हो गया तो वो डेथ को भी, जैसे कि हाइपर टेंशन हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों में सुनते होंगे कि कोई हाइपर टेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज हो गया, सो इट मे कोलैप्स, तुरंत कोलैप्स हो सकता है। सब एक्यूट इन केस जब आप मछलियों के केस में देखते हैं, जैसे रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर इवन 5 डिग्री सेल्सियस, यदि 5 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर रैपिड चेंज होगा
या जो भी मछलियों को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जब वो ट्रक या ट्रांसपोर्ट करके मछलियां अपने तालाब में डाल रहे होते हैं, इवन ही कि सर्टेन जब चेंज होता है टेम्परेचर तो उसमें बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं, और वो बोलेंगे कि हमने कल मछली को स्टॉक किया और आज मछली हमारी मर गई। सो बिकॉज दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस दैट इज कैरीड ऑन बाय दिस फिश, एंड वो तो ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस था ही, उसके साथ साथ क्या हुआ, देयर इज अ रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर व्हेन एक्लिमेटेशन इज नॉट डन बाय दैट पर्टिकुलर फार्म। सो ये होता है, ठीक है, एक्यूट पॉइजनिंग हो गया। लेकिन अब हम आपको चॉइस देते हैं, एक तो ये हो गया एक्यूट पॉइजनिंग के केस में क्या है कि ये सर्टेन डेथ हो गया। यहाँ पे सबका डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है कि मौत मतलब यदि हम किसको बोलेंगे डेंजरस, तो एक्यूट के केस में डेथ तुरंत हो गया। क्रॉनिक के केस में क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी जिसको तड़प तड़प के मरना बोलते हैं हम लोग इन केस ऑफ कैंसर पेशेंट, इन केस ऑफ ब्रेन हेमरेज। तो हो सकता है कोई बोले कि नहीं तुरंत कोलैप्स कर गया, इट इज ये ज्यादा डेंजरस है, या कोई ये बोल सकता है कि कोई तड़प तड़प के मरे। तो इस तरह का जो है इस केस में हम डेंजरस की जो डिफिनीशन है हर एक पर्टिकुलर आदमी की वो अलग अलग हो सकती है। कोई रैपिड फॉल डाउन को भी बोल सकता है कि नहीं तुरंत मर गया, चलो चलता चलता मर गया, खत्म हो गया, या किसी ने गोली मार दी, खत्म हो गया। और कोई पेन को टॉलरेट करते हुए मर रहा है, तो उस केस में आप खुद उसको डिसाइड कर ले क्या डेंजरस है, तो अपने अपने हिसाब से वो तय कर सकता है। क्लियर? सो बेसिकली एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक पॉइजनिंग जो है वो हम लोग अभी तक समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कि बेसिकली जब टॉक्सिसिटी टेस्टिंग होती है, तो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? तो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग की जो सर, हेलो यस यस सर, सर क्रोनिक में एक सर पूछना था। हाँ यस कि हेलो हाँ यस यस प्लीज सर, क्रोनिक में सर जो स्मॉल अमाउंट में हम लोग जो पॉइजनस जो देते हैं, क्या सर कुछ मंथ के बाद इसको हम स्टॉप कर दें तो इसका इफेक्ट कुछ दिन के बाद दिखेगा या मतलब रुक जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। सो बेसिकली क्या होता है कि देयर आर सर्टेन ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो मेटाबोलाइज करते हैं, जैसे कि वो जैसे लीवर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल्स जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं टाइम फ्रेम के साथ हमारे टिश्यू में, तो वो एक्यूमुलेट हो गए, आपने स्टॉप किया और वो हमारे बॉडी से नहीं निकल सकता। जैसे हम लोग लाइपोफिलिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है, लाइपोफिलिक सब्सटेंसेस जैसे हम लोग ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोक्लोरीन्स, ये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं, ये फैट सॉल्युबल है, तो वो डिपोजिट हो जाएगा। आप फर्दर यदि आप नहीं लेते हो एक समय के आने के बाद भी, तो वो क्या होगा कि वो एक्यूमुलेट तो होगा, लेकिन अब आप टॉक्सिक लेवल पे नहीं जा रहा है, तो वो फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन और बिहेवियरल अल्टरेशन भी शो नहीं करता, नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपका टोटल ऑर्गन खराब नहीं हुआ, आपका टोटल जो वो फैट जो है वो डिपॉजिट नहीं किया, लेकिन जब ये सैचुरेशन पॉइंट पे चला जाएगा तब जो है वो शो करता है। क्लियर? लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो हमारा शरीर उसको मेटाबोलाइज कर देता है, उनको एक्सक्रीट कर देता है, एक विड्रॉल पीरियड मतलब एक टाइम फ्रेम होने के साथ साथ ये विड्रॉल टाइम होता है जो हमारी शरीर उसको क्या करती है, निकाल बाहर करती है, चाहे वो स्वेटिंग से हो, चाहे यूरिनल से हो, या फिर फीकल मैटर से हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस कोई टॉक्सिक नहीं हो सकते, लेकिन बेसिकली जो लाइपोफिलिक सब्सटेंसेस हैं दे में भी टॉक्सिक, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हो गए, ऑर्गेनोक्लोरीन्स हो गए, इस तरह के जो इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स हैं दे एक्यूमुलेट एंड दे एक्यूमुलेट, और जैसे हम लोग बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, तो ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं। यदि हमने स्टॉप कर दिया तो उसके इफेक्ट को हम स्टॉप कर दे रहे हैं फिलहाल, ठीक है, लेकिन जितना डिपोजिट है वो हमारे बॉडी में रहेगा। क्लियर? लेकिन ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जो लाइपोफिलिक नहीं है, वो क्या होगा, वो हमारे बॉडी से स्लोली एक्सक्रीट हो जाता है, तो इस तरह के सब्सटेंसेस रीजनरेट हो जाता है। हमारा जो लीवर टिश्यू सपोज किसी टॉक्सिक एजेंट के लेने की वजह से डैमेज हो गया है, तो हमारा जो लीवर होता है वो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है उसमें, तो वो रीजनरेट कर सकता है,
ठीक है। तो इस केस में तो ये डिपेंड करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज गोइंग टू बी इंटॉक्सिकेटेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और इंडिविजुअल। क्लियर? ठीक है। ठीक है राजू? सर यस सर। Okay. Then we discuss about toxicity testing. If we say about the toxicity testing, why we do? This is for the study of acute poisoning cases कि मतलब कौन कौन से substances हैं जो तुरंत fall down कर सकते हैं, कितना amount है। In case of सब chronic और सब acute जिसको हम लोग बोलते हैं, इस केस को स्टडी करने के लिए या क्रॉनिक पॉइजनिंग केसेस को स्टडी करने के लिए या डेवलपमेंटल टेस्टिंग के लिए, डेवलपमेंटल जो टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, कि जो पर्टिकुलर फेज में कोई ग्रो आउट हो रहा है तो उसमें जब हम कोई फीड इंग्रेडिएंट, सपोज बहुत सारे फीड इंग्रेडिएंट्स बनते हैं तो क्या उनका, जैसे हम लोग बोलते हैं ल्यूसेनिया का जो लीफ है वो हम लोग यूज करते हैं या सोयाबीन का हम लोग लीफ यूज कर सकते हैं, तो क्या इसके डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पे क्या कोई इफेक्ट हो रहा है? क्या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है? हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली 4 तरह के होते हैं। एक होता है हाइपर सेंसिटिविटी 1 जिसको इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, जैसे कुछ भी इनहेल किए, जैसे किसी को क्या होता है, एक लिमिट अमाउंट से ज्यादा एक लिमिट अमाउंट से ज्यादा डस्ट क्रॉस करने के बाद क्या होता है, तुरंत एलर्जिकल रिएक्शंस होना शुरू हो जाता है, हमारा बॉडी सूट करने लगता है, जैसे रैशेस आ जाएंगे या फिर छींक आ जाता है। तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, जिसको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं, कि मतलब एक वीक पीरियड ऑफ, मतलब जो 1 सप्ताह का टाइम ले सकता है, जो हाइपर सेंसिटिव, जैसे दमा वमा अस्थमा, एक आदमी रह रहा है और एक पर्टिकुलर स्थिति में रहने के बाद तब वो शो किया हाइपर सेंसिटिविटी केस। तो इन दैट केस फिर हम लोग आते हैं कार्सिनोजेनेसिटी, यानी कोई भी सब्सटेंस वो कार्सिनोजेनिक है या नहीं, ठीक है। देन म्यूटाजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी क्या है, सडन चेंज, यानी कि जो क्रॉस लिंकेज होता है, जो एटीसीजी है, वो कहीं ना कहीं जो क्रॉस बॉन्डिंग यदि कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, यदि हमारा जीन स्ट्रक्चर चेंज होगा तो ऑब्वियसली इफ देयर विल बी अ जीनोटाइप स्विचिंग, देन ऑब्वियसली देयर विल बी चेंज इन देयर फेनोटाइप्स। क्लियर? तो म्यूटाजेनिसिटी टेस्टिंग के लिए हम लोग देखते हैं। देन क्या है, रिप्रोडक्टिव चेंजेस, क्या वेदर द पर्टिकुलर सब्सटेंस इन्फ्लुएंस द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। जैसे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, जैसे क्लोव ऑयल हम लोग बोलते हैं, यदि क्लोव ऑयल इज यूज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट मे लीड टू इम्पोटेंसी, ठीक है, यानी कि चाहे वो एनेस्थेटिक के रूप में हम लोग फिश को यूज करें या फिर, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हो सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग टॉक्सिसिटी टेस्टिंग की जाती है। फिर हम लोग आते हैं अब क्रोनिसिटी फैक्टर। ये बहुत सारे लोगों को समझना चाहिए। सो बेसिकली हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, ये टॉक्सिसिटी टेस्टिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सर, यस सर एक था सर बिहेवियरल टॉक्सिसिटी, ये क्या होता है सर? बिहेवियरल टॉक्सिसिटी मतलब हो गया, इज देयर एनी बिहेवियरल चेंज, जैसे कि अभी न्यूज में भी आ रहा होगा कि जैसे एस्ट्राजेनेका ने एक वैक्सीन डेवलप किया और उसमें जो है वो कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आने लग गए, उनमें बिहेवियरल अल्टरेशंस आना शुरू हो गए। यानी कि बिहेवियरल अल्टरेशन करने का क्या मतलब, जो उनका जनरल बिहेवियर है उनके विपरीत या उनके अगेंस्ट जो भी हमारे पास जो जिस चीज की स्टडी की गई है, जैसे हमने कोई पर्टिकुलर टॉक्सिसिटी मतलब टॉक्सिक एजेंट या पॉइजनस सब्सटेंसेस, हमने एक टॉक्सिसिटी टेस्टिंग कर रहे हैं उस सब्सटेंस की, ठीक है, लेकिन सपोज कि वो सोलिंग बिहेवियर है, अब वो क्या हो गया, आइसोलेट होकर के वो अकेली घूम रही है, या सपोज उसमें सर्कुलर मूवमेंट होना शुरू हो गया, तो ये जो बिहेवियरल अल्टरेशन हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं। क्लियर? अब हम लोग आते हैं क्रोनिसिटी फैक्टर पे। क्रोनिसिटी फैक्टर क्या है? बेसिकली क्रोनिसिटी फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्यूट टू क्रोनिक LD50 डोजेज इज नोन एज क्रोनिसिटी फैक्टर। एक्यूट टू क्रोनिक LD50 डोजेज क्या है? एक्यूट, अब टाइम ड्यूरेशन, आपके पास टाइम फ्रेम है कि हमारे पास
एक्यूट पॉइजनिंग किसको बोलेंगे और क्रोनिक, यानी एक्यूट बाय क्रोनिक का जो रेशियो निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिसिटी फैक्टर। ठीक है, इसका एग्जांपल भी है, हम लोग देखेंगे साथ साथ में। सच कंपाउंड्स विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स हैव अ हाई क्रोनिसिटी फैक्टर, मतलब कंपाउंड्स व्हिच हैविंग अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स, मतलब एक तो वो एब्जॉर्ब तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ वो टिश्यू डैमेज भी कर रहा है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस का जो क्रोनिसिटी फैक्टर होता है वो हमेशा हाई होता है। क्लियर? देन a chronicity factor greater than 2 indicates a relatively cumulative toxicant, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का यदि क्रोनिसिटी फैक्टर 2 से अधिक हो तो ये इंडिकेट करता है कि ये वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो रिलेटिवली जो ये एक्यूमुलेट जो क्यूमुलेटिव टॉक्सिकेंट है, इसका मतलब है कि वो एजेंट वो एब्जॉर्ब एक्यूमुलेट भी बहुत फास्ट हो रहा है, एट द सेम टाइम वो टिश्यू डैमेज भी कर रहा है। सो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2। क्लियर? देन क्रोनिसिटी फैक्टर may be influenced रिलेटिवली क्यूमुलेटिव टॉक्सिकेंट। सॉरी, यहाँ पे हमने जब बोला कि जब हमारा क्रोनिसिटी फैक्टर जो होना चाहिए वो 2 से ऊपर होना चाहिए, यदि 2 से नीचे जितना ही ज्यादा आते चला जाएगा वो मोर क्यूमुलेटिव टॉक्सिकेंट होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग जैसे कि हमने चार्ट दिया था आपको, जैसे वाटर का हो गया, ठीक है, जैसे हम आपको बताए थे कि वाटर का टॉक्सिसिटी कितने गैलन पे हमारा वो टॉक्सिक केसेस कर सकता है, अल्कोहल कितने पे कर सकता है, पोटेशियम साइनाइड कितने पे कर सकता है। सो बेसिकली आप लोग इसका निकाल सकते हैं। देन क्रोनिसिटी फैक्टर, इसके लिए हमको क्या होगा, एक्यूट भी पता होना चाहिए और क्रोनिक भी पता होना चाहिए। ठीक है, और उसका जब हम रेशियो निकालेंगे, इफ इट इज ग्रेटर देन 2 it indicates that this is a relatively cumulative toxicant. Then chronicity factor may be influenced by the tendency to accumulate versus being rapidly eliminated or detoxified. जो अभी आप लोग आपने डिस्कस किया, राजू ने डिस्कस किया कि क्रोनिसिटी फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहला कि ये जो हमारा सब्सटेंस है ये कितना हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है और कितनी जल्दी हमारे शरीर के बाहर एक्सक्रीट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे सपोज कि कोई लाइपोफिलिक सब्सटेंसेस है, तो लाइपोफिलिक जो सब्सटेंसेस होगा वो क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। जो लाइपोफिलिक सब्सटेंसेस नहीं है वो क्या करेगा, वो शरीर से हमारा जो लीवर है उसको मेटाबोलाइज करके हमारे शरीर से बॉडी से एलिमिनेट कर देगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो बेसिकली ये जो क्रोनिसिटी फैक्टर है ये बताता है कि कितनी जल्दी हमारा शरीर, यानी कि सपोज वो कितना ही टॉक्सिक सब्सटेंस हो, यदि हमारा शरीर उतना ही जल्दी एलिमिनेट कर दे। आप देखते भी होंगे किसी भी पॉइजनस सब्सटेंस पे लिखता है कि इफ इट इज इनहेल्ड तो यू मस्ट कंसल्ट अ फिजिशियन, और जब आप फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, वो सर्टेनली आपको तुरंत वोमिट करवाता है, बिकॉज कि यदि उसकी क्रोनिसिटी फैक्टर हायर होगी तो क्या होगा, क्रोनिसिटी फैक्टर हायर होगी तो वो एब्जॉर्ब हो सकता है या टिश्यू डैमेज कर सकता है, तो तुरंत जो है वो उसको आपको वोमिट करवा देगा। आपको हेलो हेलो, हाँ जी बोलो। हाँ मॉर्निंग में अभी थोड़ा क्लास में हूँ। ओके ओके ठीक है। देन इट में ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस बाय हेलो हेलो सर आवाज नहीं आ रही थी। अभी क्लियर है? यस Okay, so it may also be influenced by cumulative and progressive damage that occurs from repetitive toxic insults to a target tissue, यानी कितना कोई पर्टिकुलर एजेंट वो लिया जा रहा है बॉडी से और कितना ये डैमेज कर रहा है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑर्गन इट इज डैमेज्ड, तो ये जताता है। सो क्रोनिसिटी फैक्टर हम लोग निकालते हैं बेसिकली। देन फिर क्या है, अ कंपाउंड मे हैव लो एक्यूट टॉक्सिसिटी बट it has the tendency to accumulate in body tissues and it can cause subacute or chronic toxicity. So obviously इसमें कुछ भी समझाने के लिए नहीं है,
जो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रैपिड मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते हैं क्लिनिकल साइंस, लेकिन ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद वो अपने क्लिनिकल साइंस और बिहेवियरल अल्टरेशन शो करते हैं. Such toxicants are termed as cumulative poisons. So the chronicity factor gives an indication of cumulative effects of poison. So how such poisons are relatively cumulative toxicant, or this is higher toxic. So it shows the basically the difference in between these. Then however chronicity factor may be influenced by the tendency to produce tolerance. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो कितना जो है वो जो क्रोनिसिटी फैक्टर है वो कितना टॉलरेंस लिमिट उसकी क्या है, वो कितना टॉलरेट कर सकता है. जैसे सपोज हम लोग यदि पोटेशियम साइनाइड की बात करें, यदि इसकी एक्यूट LD50 हम लोग निकालते हैं तो कहा जाता है कि यदि 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है, 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट टिश्यू में डिलीवर किया जाए तो उसको लीड कर सकता है डेथ. लेकिन सपोज उसको एकदम लिटिल अमाउंट में उसको हम डाल रहे हैं, ठीक है, लिटिल अमाउंट में जब हम डाल रहे हैं तो वह एनिमल कितना टॉलरेट कर सकता है. तो एक जो प्री एक्सपोज्ड है यानी 10 mg से कम हम डाल रहे हैं, इवन 0.01 0.02 इस तरह के डोजेज हम डाल रहे हैं, तो ऐसे एनिमल जो प्री एक्सपोज्ड हुए हैं, जो पहले से ही हम उनको लिटिल अमाउंट में दे रहे हैं, उनके लिए जो लेथल डोज हो जाता है वो कितना हो जाता है 250 mg. लेथल डोज आप लोगों को पता है, लेथल डोज द डोज एट विच डेथ हो जाएगी, लीड्स टू डेथ ऑफ एनिमल. ठीक है, तो यही है कि लेथल डोज और तो LD50 होता क्या है कि इस केस में जो प्री एक्सपोज्ड है वहां 250 mg पर केजी चला गया. तो अब क्रोनिसिटी फैक्टर यदि निकालोगे तो सिंपली डिवाइड कर दो, 10 is to 250 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 250. ठीक है, तो इसका जो क्रोनिसिटी फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए कितना एक्यूमुलेटेड हो, कितना क्यूमुलेटिव टॉक्सिकेंट के रूप में वो एक्ट कर रहा है, तो 0.04. ठीक है, तो क्रोनिसिटी फैक्टर यदि मोर देन 2 या 2 से बड़ा है तो वो रिलेटिवली क्यूमुलेटिव पॉइजन कहलाएगा, यदि लेस है तो क्यूमुलेटिव टॉक्सिकेंट कहलाएगा. ठीक है, तो ये था बेसिकली क्यूमुलेटिव पॉइजन्स के बारे में. अब हम लोग आते हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इन पॉइजनस सब्सटेंसेस जब इनहेल्ड किए जाते हैं या लिए जाते हैं. सो बेसिकली द इंडिविजुअल बिकम्स सेंसिटाइज्ड